again. A very good morning to all of you. This is Abhilasha Nahata from Leal Public School, and students, today we all are going to continue our chapter number 7 from your geography textbook. The name of the chapter is Human Environment, Settlement, Transport and Communication. So in our previous class, we already discussed about settlements. There are two types of settlements, permanent settlements and temporary settlements. We talked about it. Even after that, we talked about urban settlement and rural settlement also. Okay, so now our today's topic is transport. Now this is the second thing which is very much puts which puts the great importance in human life. बहुत ज़्यादा important role play करता है transport. As you all know, when you travel or when you come to school, you are using any mode of transport. कोई ना कोई mode use कर रहे हो. You are using like normally हम roadway से ही यहाँ पे travel कर रहे हैं. तो कोई आप कभी vehicles, कौन से vehicles use कर रहे हो? आप cycle use कर रहे हो, आप auto use कर रहे हो, bus use कर रहे हो. So transport जो है बहुत ही important part है human life का. So transport is the means by which people and goods move. लोग या फिर गुड्स को मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह हमें भेजना है. वी आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट. ओके, एंड अगर आपको घर से स्कूल आना है, यू आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट. अगर आपको बीकानेर से सिंगापुर जाना है, यू आर यूजिंग ट्रांसपोर्ट. सो ट्रांसपोर्ट इज द मीन्स बाय विच पीपल एंड गुड्स मूव. लोग और पीपल जो है जब मूव करते हैं, जिसके थ्रू मूव करते हैं, उसको हम ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. In the early days, it took a great deal of time to travel long distances. People had to walk and used animals to carry their goods. Invention of the wheel made transport easier. With the passage of time, different means of transport developed, but even today people use animals for transport. Now, पहले के टाइम पे क्या होता था, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था, इन्वेंशंस नहीं थे, टेक्नोलॉजीज नहीं थी. तो लोगों को जब भी ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करना होता था, इट वाज सच अ चैलेंजिंग टास्क फॉर देम. ठीक है, बहुत चैलेंजिंग होता था. इट टुक मंथ्स. अगर उनको एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, उनको महीने महीने लग जाते थे ट्रैवल करने में. ठीक है, पीपल हैड टू वॉक एंड यूज एनिमल्स टू कैरी देयर गुड्स. लोगों को चलना पड़ता था, वो एनिमल्स को कैरी करते थे, अपने गुड्स को एनिमल्स को यूज करते थे अपने गुड्स को कैरी करने के लिए. बट आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ द व्हील के इन्वेंशन के बाद जो ट्रांसपोर्ट है बहुत ज्यादा इजियर हो चुका है. नाउ वी कैन ट्रैवल, इफ यू वांट टू ट्रैवल यूरोप or you can say anywhere in the world, we can travel in like few hours. Okay, हम few hours, few days में we can travel there. हम travel कर सकते हैं ना, क्योंकि wheels के invention के बाद transport जो है बहुत easy हो चुका है. If we want to send something to any other city of India, we can easily like send those goods in very few time. राइट, बिकॉज ट्रांसपोर्ट के वजह से जो है हम गुड्स को बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. हम बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में वी कैन मूव. राइट, सो जैसे जैसे टाइम जो जा रहा है, वैसे जैसे डेवलप हो रहा है ट्रांसपोर्टेशन, तो वी आर यूजिंग डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बट फिर भी आज के टाइम पे वी आर यूजिंग एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्ट. यू माइट हैव सीन सम ऑफ द कैमल्स एंड बुलक्स एंड डोंकीज, जो जिन्हें गुड्स को, मतलब जिनके ऊपर गुड्स वगैरह रख के हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं. वी आर यूजिंग दैम. वी आर loading goods on the animals and we are like moving them. ठीक है, we are using those animals for our transportation. Okay, now in our country, donkeys, mules, bullocks and camels are common. In the Andes mountains of South America, llamas are used, as are yaks in Tibet. The early traders from other countries used to take several months to reach India. They took either the sea route or the land route. Aeroplanes have made travel faster.
Now it takes only 6 to 8 hours to travel from India to Europe. Modern means of transport thus saves times and energy. Now in our country, donkeys, mules क्या होते हैं? खच्चर, हिंदी में खच्चर बोलते हैं. वैसे वो जो डोंकीज और हॉर्स होते हैं ना, मतलब उनके जैसे दिखते हैं वो. ठीक है, हमारे इस कंट्री में डोंकीज, म्यूल्स, जो बुलक्स हो गई, कैमल्स हो गए, बहुत कॉमन है. वी आर यूजिंग दीज एनिमल्स लाइक वेरी कॉमनली वी आर यूजिंग दीज एनिमल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स और यू कैन से फॉर ट्रांसपोर्टिंग इवन ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. एंडीज माउंटेन, साउथ अमेरिका में जो एंडीज माउंटेन्स है आपका, वहां पे नॉर्मली जो रग्ड एरिया होता है ना, वहां पे जो है हम एनिमल्स का यूज करते हैं नॉर्मली. इलैमस आर यूज्ड. इलैमस इज आल्सो जस्ट लाइक यैक्स होते हैं ना, उनके जैसे इलैमस भी होते हैं. तिब्बत में यैक्स का यूज होता है और इलैमस जो एंडीज माउंटेन है वहां पे इलैमस का यूज होता है. इट डिपेंड्स अपॉन वहां पे कौन सा एनिमल जो है वहां पे मिलता है. ठीक है, मतलब वहां पे फाउंड होता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम एनिमल्स का यूज करते हैं. मतलब वी आर यूजिंग दोज एनिमल्स, वी आर लाइक टेकिंग द हेल्प ऑफ दोज एनिमल्स. जो अर्ली ट्रेडर्स थे, जब जैसे अर्ली ट्रेडर्स जब ट्रांसपोर्ट का बहुत ज्यादा व्हील्स वगैरह का इन्वेंशन नहीं हुआ था, या फिर व्हील्स का इन्वेंशन हो गया था, बट ये जो मॉडर्न वेज है, मॉडर्न टेक्निक्स जो है, मॉडर्न व्हीकल्स वगैरह जब तक इन्वेंट नहीं हुए थे, तब अर्ली ट्रेडर्स जो थे एक कंट्री से दूसरे कंट्री पहुंचते थे, या फिर चाइना से इंडिया, इंडिया से सपोज इंडिया से आपका यूरोप वगैरह उन्हें ट्रैवल करना होता था. इट टुक देम, इट टेक सेवरल मंथ्स. ठीक है, बहुत महीने लग जाते थे उनको एक जगह से दूसरी, एक कंट्री से दूसरी कंट्री ट्रैवल करने में. वो सी रूट लेते थे या फिर लैंड रूट करते थे, प्रेफर करते थे. ठीक है, क्योंकि इंडिया से हम लैंड रूट, मतलब जो आपका अगर हम सेंट्रल, ईस्ट और वेस्ट एशिया की बात करें तो हम वहां से इंडिया में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं. बट नॉर्मली साउथ से इंडिया में ट्रैवल करना जो है वो हम किसके थ्रू ही कर सकते हैं? नॉर्मली हम सी रूट के थ्रू ही कर सकते हैं. सो लैंड रूट प्रेफर करते थे या फिर सी रूट प्रेफर करते थे. एरोप्लेन्स हैव मेड ट्रैवल फास्टर. अब एरोप्लेन्स जो है ऑब्वियसली दे आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. फास्टेस्ट मीन्स है वो आपके ट्रांसपोर्टेशन के, फास्टेस्ट मीन्स है आपके ट्रांसपोर्ट के, और बहुत इजीली हम क्या कर सकते हैं, कुछ ही घंटों में हमें एक कंट्री से दूसरे कंट्री हम पहुंच सकते हैं. नाउ इट टेक्स ओनली 6 to 8 hours टू ट्रैवल फ्रॉम इंडिया टू यूरोप. इंडिया से अगर हमें यूरोप ट्रैवल करना है, इट हार्डली टेक्स 8 hours. ठीक है, 6 to 8 hours इतना ही लगता है. मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो इट सेव्स टाइम एंड एनर्जी, एनर्जी एंड टाइम दोनों ही उन्होंने सेव करके सेव किया है. सो द 4 major means of transport are roadways, railways, waterways and airways. So what are the 4 major means of transport? Roadways, railways, waterways and airways. These are the 4 major means of transport. Please underline this statement. Next, we talked about transport. Now under transport there are 4 major means of transport, that is roadways, railways, waterways and airways. So now we will talk about roadways. Okay, roadways की बात करते हैं. The most commonly used means of transport, especially for short distances, are रोड्स. मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. बहुत कॉमनली जो हम यूज करते हैं, ट्रांसपोर्ट जो यूज करते हैं, वो हम कौन सा वे यूज करते हैं? वी आर यूजिंग रोडवेज. So even when you are traveling from your home to school, you are using roads. roads का यूज कर रहे हो ना, रोडवेज का ही तो यूज कर रहे हो. ऐसा तो नहीं है कि आप एरोप्लेन में, अपनी प्राइवेट जेट में आप घर से अपने स्कूल आ रहे हो, ऐसा तो नहीं है ना, या फिर वाटरवेज में आ रहे हो, ऐसा नहीं है ना. सो द मोस्ट कॉमनली यूज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर शॉर्टर डिस्टेंसेज, शॉर्ट डिस्टेंसेज के लिए जो है रोड्स है. They can be metalled and unmetalled. Metalled पक्का रोड और unmetalled कच्चा रोड. हमारे एलपीएस जो घरसी से ब्रांच है उसके सामने वाली जो रोड है, that is an example of unmetalled रोड, कच्चा रोड. और मेटल्ड पक्का रोड, आप जयपुर हाईवे हो गया, ठीक है, आपका नोखा रोड हो गई,
या ठीक है, और आपके बहुत सारी जो रोड्स है, ठीक है, जो बीकानेर की जो रोड्स हैं हम देखते हैं वो मेटल्ड रोड्स है. जस्ट लुक एट द फिगर्स हियर. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ मेटल रोड एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनमेटल्ड रोड. ओके. Roads have also been built in terrains. Terrains is used for land areas, different types of regions. We are using terrains for regions. ठीक है. So roads have also been built in terrains like deserts, forests, and even high mountains. ठीक है. Deserts हो गए, रेगिस्तान में, जंगलों में, even high mountains में भी हम roads को क्या कर सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं. इफ यू एवर ट्रेवल्ड टू उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश तो आपने देखा होगा नॉर्मली वहां पे जो है रोड ट्रांसपोर्ट का हम यूज करते हैं. वी आर यूजिंग रोड ट्रांसपोर्ट या फिर एयरवेज, बट वहां पे रेलवेज का कंस्ट्रक्शन इतना ज्यादा नहीं है. हम क्या यूज करते हैं, हम रोडवेज ही यूज करते हैं. तो डेजर्ट्स में, फॉरेस्ट में, इवन हाई माउंटेन्स में भी जो है रोड्स जो है बिल्ड कर सकते हैं. मनाली ले हाईवे इज द हिमालयन माउंटेन्स इज वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज इन द वर्ल्ड. मनाली ले हाईवे जो है वर्ल्ड की वन ऑफ द हाईएस्ट रोडवेज है वर्ल्ड की. रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज. जो रोड्स हम अंडरग्राउंड में बनाते हैं, ठीक है, जैसे टनल्स वगैरह होते हैं, उनको हम अंडर सबवेज या फिर अंडरपाथ्स बोलते हैं. एंड फ्लाईओवर्स आर बिल्ट ओवर रेस स्ट्रक्चर्स. रेस स्ट्रक्चर्स मतलब कि ऊपर के साइड से, सपोज जस्ट टेक एन एग्जांपल, यू ऑल लाइक यू ऑल हैव, मतलब कभी भी आपने सूरज टॉकीज को आप विजिट किया होगा अपने बीकानेर में, ठीक है. वहां पे हम पीबीएम के साइड जब जाते हैं तो हम एक फ्लाईओवर देखते हैं. तो जो ब्रिज सा बना हुआ है जिसके नीचे से जो है रेलवे क्रॉस करती है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ फ्लाईओवर. मतलब जो रेस स्ट्रक्चर में जो बना हुआ होता है और ऊपर के साइड से जैसे इस टाइप से जो बना हुआ होता है, ठीक है, नीचे से रेस स्ट्रक्चर में जो बना हुआ होता है उसको हम बोलते हैं flyovers. Okay, now just look at the do you know box. There are several national and state highways in India. The latest development in India is the construction of expressways. The golden quadrilateral connects Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Now national highways, काफी national highways हमें देखने को मिलते हैं, state highways भी हमें देखने को मिलते हैं. National highways those highways which connect वन स्टेट टू अनदर स्टेट. ठीक है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जब कनेक्ट करती है नॉर्मली उसे हम स्टेट नेशनल हाईवेज बोलते हैं. स्टेट हाईवेज क्या होते हैं, स्टेट हाईवेज नॉर्मली एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, इवन एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जो कनेक्ट करती है, ठीक है, उसको भी हम स्टेट हाईवेज बोलते हैं. नेशनल हाईवेज में आप बहुत सारे स्टेट्स जो है उसमें कवर हो जाते हैं. लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या है आपकी हाईवेज में इंडिया में, जो वो है एक्सप्रेसवेज की, जिससे हम जितनी भी इंपॉर्टेंट सिटीज है, स्पेशली दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता, इंडिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, ये एक्सप्रेसवेज के थ्रू जो है कनेक्टेड है. हम इजीली जो है इस एक्सप्रेसवे से इन सिटीज को क्या कर सकते हैं, इन सिटीज में जा सकते हैं कम समय में. ठीक है, नेशनल हाईवेज के अलावा जो एक्सप्रेसवेज हैं उनके थ्रू, और इसे हम गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता. जस्ट लुक हियर. ठीक है, दिस इज दिल्ली, वेट, यस, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई एंड ये है आपका मुंबई. तो इजीली क्या है, ये ऐसी एक्सप्रेसवे है. क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला गया है, क्योंकि ये किसी भी चार साइड्स वाला जो भी होता है वो क्वाड्रिलेटरल होता है. तो देखो ये दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आपस में ये क्या कर रहा है, इसको कनेक्ट कर रहा है. देखो यहाँ से कोलकाता से मुंबई भी जा सकते हैं, मुंबई से कोलकाता, चेन्नई टू दिल्ली, दिल्ली टू चेन्नई, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू दिल्ली, दिल्ली टू कोलकाता, कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता. हम इजीली क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली हम यहाँ पे इन एक्सप्रेसवेज को एक्सप्रेसवेज को लेते हुए हम डायरेक्टली इन सिटीज को कनेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज रेलवेज. द ट्रेन फ्रॉम Zining to first of all let's do this. The railways carry heavy goods and people over long distances quickly and cheaply. The invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. Diesel and electric engines have largely replaced the steam engines. In places, superfast trains have been introduced to make the journey faster. The railway network is well developed over the plain areas. Advanced technological skills have enabled laying of railway lines in difficult mountain terrains also.
but these are much fewer in number. Indian railway network is well developed. It is the largest in Asia. Now, railways, second mode of transport is railways. Second major means of transport is railways. अब railways जो है heavy goods को और कैरी करने में, और अगर हमें कोई भी लॉन्ग डिस्टेंस को क्विकली और चीपली अगर ट्रैवल करना है तो हम रेलवेज का यूज करते हैं. और स्टीम इंजन के इन्वेंशन से, नाउ इट्स योर होमवर्क, यू ऑल आर सपोज टू फाइंड आउट द नेम ऑफ द पर्सन हु इन्वेंटेड स्टीम इंजन. Who invented steam engine? You all are supposed to find out this answer. I will ask you this question in my next class. Okay, so who invented steam engine? This is your homework. So the invention of the steam engine and the industrial revolution helped in speedy development of rail transport. As you all know, steam engine के invention से और industrial revolution. What is industrial revolution? जब industries बहुत जल्दी develop हो रही थी, established हो रही थी, ठीक है. एक ऐसा टाइम आया था 19th century में जब industries बहुत ज्यादा develop हो रही थी all over the world. That is industrial revolution. तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के वजह से अब गुड्स बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर हो रहे थे. अब गुड्स मैन्युफैक्चर हो रहे थे तो मार्केट भी चाहिए ना, लोगों तक उस गुड्स को भी तो हमें पहुंचाना है. तो उस टाइम पे रेलवेज का जो है बहुत, रेल ट्रांसपोर्ट का जो है बहुत ज्यादा स्पीडी डेवलपमेंट हुआ. हमें इंडिया में भी देखने को मिलता है कि हम इंडिया में भी जो है 19th सेंचुरी में रेल डेवलपमेंट हुआ था. रेल ट्रांसपोर्टेशन जो है यूज होने लग गया था. ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने रेलवेज का कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बन करवाया था. डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स जो है, स्टीम इंजन्स को आज के टाइम पे ऑब्वियसली टेक्नोलॉजिकली हम क्या है एडवांस होते जा रहे हैं. वी आर यूजिंग रिसोर्सेज. तो उससे क्या है, डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स ने स्टीम इंजन्स को रिप्लेस कर दिया, जिससे कि और सुपर फास्ट ट्रेन्स हमें मिलने लग गई है. सुपर फास्ट ट्रेन्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे कि हमारी जर्नीज जो है कंपैरेटिवली जो है फास्टर हो और ज्यादा हम इजिली रीच कर पाए. सो रेलवे नेटवर्क बहुत ही वेल डेवलप्ड है. नॉर्मली जो प्लेन एरियाज है आपके, जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो रेल नेटवर्क है वो काफी डेवलप्ड है और काफी एडवांस टेक्नोलॉजीज भी हम यूज करके हम माउंटेन रीजन्स में भी जो है रेलवे लाइंस को क्या कर रहे हैं, हम वी आर लेइंग रेलवे लाइंस. सो डिफिकल्ट माउंटेन टेरेन्स में भी हम कर रहे हैं. इंडिया का जो रेल नेटवर्क है बहुत वेल डेवलप्ड है, और इंडिया का जो रेल नेटवर्क है सबसे ज्यादा, इट इज द लार्जेस्ट इन एशिया. एशिया का सबसे लार्जेस्ट जो है रेल नेटवर्क है इंडिया, आपका रेल नेटवर्क है इंडिया का, एशिया का लार्जेस्ट. ओके, नाउ जस्ट लुक एट दिस. डू यू नो बॉक्स? द ट्रेन फ्रॉम जिनिंग टू लहासा रन्स एट एन ऑल्टीट्यूड ऑफ 4,000 meter above sea level, and the highest point is 5,072 meter. सो चाइना में जिनिंग टू लहासा एक ट्रेन चलती है. वो कौन से ऑल्टीट्यूड पे, किस हाइट पे चलती है? 4,000 मीटर अबव सी लेवल. सी लेवल से 4,000 मीटर अबव जो है हाइट पे जो है ये ट्रेन चलती है, और इसका हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 5,072 मीटर्स. इतना हाई, इतनी हाइट पे जो है ये ट्रेन, ये रेलवे लाइन बनी हुई है, ले हुई है, और इस पे रेल चलती है. ठीक है. नाउ जस्ट लुक एट द अनदर डू यू नो बॉक्स. एवरीवन प्लीज फोकस ऑन योर डू यू नो बॉक्स वेरी थॉरोली एंड अच्छे से कर लेना, क्योंकि आपके स्पेशली ऑब्जेक्टिव में आपके डू यू नो बॉक्सेस से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में काफी क्वेश्चन आ सकते हैं. सो प्रिपेयर इट वेल. Now, Trans-Siberian Railway is the longest railway system connecting St. Petersburg in Western Russia to Vladivostok on the Pacific coast. Now, just look here in this map. ये सेंट पीटर्सबर्ग है. ये यहाँ से जो एक रेलवे चलती है वो यहाँ से लेके सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टॉक यहाँ तक, पैसिफिक कोस्ट यहाँ तक, इतना बड़ा रेल नेटवर्क है. रशिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री है, और सोच लीजिए रेलवे ये इतनी लंबी ट्रेन चलती है. ये सेंट पीटर्सबर्ग टू आपका व्लादिवोस्टॉक, इतने ये, और ये वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे है जो सेंट पीटर्सबर्ग
वेस्टर्न रशिया से आपका पैसिफिक कोस्ट, एकदम ईस्टर्न में पैसिफिक कोस्ट में जो व्लादिवोस्टॉक है वहां तक ये कनेक्ट करके रखता है। सबसे लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क है ये, और इसको हम ट्रांस साइबेरियन रेलवे भी बोलते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज वाटरवेज। You have already learned that since early days, waterways were used for transportation. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. They are mainly of two types, inland waterways and sea routes. Now, waterways जो है, they are the cheapest means of transportation. Cheapest मतलब सबसे सस्ता जो है means ट्रांसपोर्टेशन का वो है वाटरवेज, एंड बहुत चीपली हम गुड्स को जो है हैवी और बल्कि गुड्स को एक प्लेस से लॉन्ग डिस्टेंसेस में हम क्या कर सकते हैं, उसको जो वाटरवेज है वो कैरी कर सकते हैं। दे आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के हैं आपके, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स। इनलैंड जो एक कंट्री के अंदर ही एक सिटी से दूसरे सिटी में आपका जो रिवर वगैरह होती है और उसके थ्रू हम जब ट्रैवल करते हैं या गुड्स को मूव करते हैं, तो दैट इज इनलैंड वाटरवेज। एंड सी रूट्स, जब एक कंट्री से दूसरे कंट्री में हमें गुड्स वगैरह भेजने हैं, गुड्स वगैरह मूव करवाने हैं, तो हम सी रूट्स का नॉर्मली यूज करते हैं। Navigable rivers and lakes are used as inland waterways. Some of the important inland waterways are the Ganga Brahmaputra river system, the Great Lakes in North America, and the River Nile in Africa. अब जो नेविगेबल रिवर्स है, नेविगेबल रिवर्स मतलब वी आर यूजिंग सैटेलाइट्स फॉर नेविगेट द रिवर्स, जिससे कि हमें इजीली जो है कि इस प्लेस से उस प्लेस तक जाना है, तो उसका पाथ बना हुआ तो होना चाहिए ना। तो ये नेविगेबल रिवर्स जो है काफी नेविगेबल रिवर्स का हम यूज करते हैं, लेक्स का यूज करते हैं वाटरवेज में। और कुछ इंपॉर्टेंट जो इनलैंड वाटरवेज हैं कौन कौन से हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, इंडिया का जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है, नॉर्थ अमेरिका का ग्रेट लेक हो गया, अफ्रीका जो लॉन्गेस्ट आपकी रिवर है नील रिवर है वो हो गया अफ्रीका की, वो आपकी क्या है? नेविगेबल रिवर्स हैं, और इनके थ्रू हम वाटरवेज गुड्स को मूव करते हैं। पीपल भी क्या है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में मूव करते हैं वाटरवेज के थ्रू। Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. Merchandise products जो normally हम सेलिंग और बाइंग के लिए जब गुड्स को कैरी करते हैं ना, तो ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो दैट इज मर्चेंडाइज। ओके, तो गुड्स जो है मर्चेंडाइज एंड गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह हम गुड्स को, और मर्चेंडाइज मतलब कि ट्रेडर्स जो हैं वाटरवेज का यूज करते हैं, स्पेशली सी रूट्स का यूज करते हैं। सपोज उन्हें इंडिया से ऑस्ट्रेलिया भेजना है, तो अगर वो कोई भी प्रोडक्ट अगर वो वाटरवेज के थ्रू भेजेंगे तो वो बहुत चीपली जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में, इंडिया से ऑस्ट्रेलिया इजीली चला जाएगा, ठीक है, और बहुत हैवी वेट्स लेके। बट हम एयरवेज में हम ज्यादा कैरी नहीं कर सकते। कुछ लोग बोलेंगे मैम एयरवेज में भी तो सेंड कर सकते हैं ना, कर तो सकते हो, बट इट इज कॉस्टली, एयरवेज बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है, ठीक है। तो इट इज द चीपेस्ट वे, चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, so that's why we are using waterways for importing and exporting products. Okay, so these routes are connected with the ports. Ports से connected है, ports बने हुए होते हैं, ठीक है। Some of the important ports of the world are Singapore and Mumbai in Asia, New York, Los Angeles in North America, Rio de Janeiro to South America, Durban and Cape Town in Africa, Sydney in Australia, London and Rotterdam in Europe, ठीक है। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट आपके पोर्ट्स है जहां से जो है मेजर इंटरनेशनल जो है आपका इंटरनेशनल गुड्स का जो है ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। दीज आर सम ऑफ द पोर्ट्स जहां पे बिजनेस पर्पस के लिए वी आर यूजिंग शिप्स एंड ऑल। ओके, नाउ नेक्स्ट मेजर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट अंडर major means of transport is airways. This is the fastest ways of transport developed in the early 20th century. It is also the most expensive due to the high cost of fuels. Air traffic is adversely affected by bad weather like fog and storms. It is the only mode of transport to reach the most remote and distant areas, especially where there are no roads and railways. Helicopters are extremely used in most inaccessible areas and in time of calamities for rescuing people and distributing food, water, clothes, and medicines. Some of the important airports are Delhi, Mumbai, New York, London, Paris, Frankfurt, and Cairo.
Now, the fastest means of transport, एयरवेज इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, और अर्ली 20th सेंचुरी में जो है डेवलप्ड हुई थी, एयरवेज डेवलप्ड हुआ था, एंड इट इज मोस्ट एक्सपेंसिव क्योंकि जो फ्यूल्स हैं, हाई कॉस्ट फ्यूल्स जो है इसमें यूज होते हैं, और ऑब्वियसली कुछ डिसएडवांटेजेस हैं एयरवेज के। एयर ट्रैफिक इज एडवर्सली, अब आप बोलोगे मैम एयर ट्रैफिक कैसे हो सकता है, तो फॉग आ जाता है कभी कभी, वेदर बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा हेवी रेन हो रही है, फॉग हो रहा है, स्टॉर्म तूफान आ रहा है, तो एयर ट्रैफिक उस टाइम पे बहुत ज्यादा एडवर्सली इफेक्ट करता है। और इसका एडवांटेज क्या है कि इट इज ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट जो मोस्ट रिमोट, एक ऐसे एरियाज में भी जा सकता है जहां पे रोड्स और रेलवेज नहीं बने हुए हैं, हम रिमोट से रिमोट एरियाज में एयरवेज के थ्रू, एयरपोर्ट और हेलीकॉप्टर एरोप्लेन्स और हेलीकॉप्टर्स के थ्रू पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर्स बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं जो इनएक्सेसिबल एरियाज होते हैं, या फिर कोई नेचुरल कैलेमिटी आई है या कोई कैलेमिटी वगैरह आई है, तो वहां पे हम लोगों को रेस्क्यू कर सकते हैं हेलीकॉप्टर्स के थ्रू, हम उन्हें फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड कुछ इंपॉर्टेंट आपके जो एयरपोर्ट्स हैं, कौन कौन से हैं एयरपोर्ट्स, दिल्ली, मुंबई, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, मुंबई का आपका छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, न्यूयॉर्क का, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट, कायरो, ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं worldwide. Okay, so this is all about today class. Thank you so much for joining the class. We can do this topic also very just this paragraph. Okay, like we have time. Communication. So before that, if you are having any doubt, please do raise your hands and clear your queries if you are having any doubt. So now our next topic is communication. Communication, it is a process for conveying messages, or you can say it is the process through which we can connect to ourselves. हम दूसरों से connect हो सकते हैं. We can deliver the messages. So it is the process of conveying messages to others. With the development of technology, humans have devised new and fast modes of communication. देखिए, पहले just look at this figure 7.10, progress in the means of communication. बहुत अर्ली पीरियड में लोग आपस में बातचीत करते थे, फिर थोड़े टाइम बाद देखो ढोल नगाड़ो, आपने माइथोलॉजिकल सीरियल्स वगैरह देखे होंगे, या फिर कुछ हिस्टोरिकल सीरियल्स इफ यू हैव सीन, और कोई हिस्टोरिकल मूवीज वगैरह देखी है आपने, तो उसमें देखा होगा कि लोग जो है किसका यूज करते थे, वो बर्ड्स का यूज करते थे मैसेज को डिलीवर करने में, या फिर वो ढोल नगाड़ों का यूज करते थे, जिससे कि एक जो सैनिक है वो ढोल बजा रहा है और फिर सबको बता रहा है कि क्या मैसेज है, राजा ने क्या मैसेज दिया है। आफ्टर सम टाइम पोस्टमैन, ठीक है, पोस्ट कार्ड, पोस्टमैन जो है, पोस्टमैन वगैरह आ गया, पोस्ट ऑफिस आ गया, तो जिसके थ्रू हम लेटर्स लिख सकते थे और एक जगह से दूसरी जगह सेंड कर सकते थे। आफ्टर सम टाइम उसके बाद न्यूज़पेपर्स आए, मैगजीन्स आए, पैम्फलेट्स आए, लीफलेट्स आए, ठीक है, प्रिंटिंग के इन्वेंशन से हम क्या कर पा रहे थे, मैसेजेस, अपने व्यू पॉइंट्स को जो है एक्सप्रेस कर पा रहे थे। एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम हम जैसे प्लेज वगैरह यूज कर रहे हैं, मूवीज के थ्रू हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, हम टेलीफोन, मोबाइल, लैपटॉप, फैक्स मशीन, today we are using this online platform for our education also. Now you can have your education online also. So with the development with the development and with the development of technology, humans जो है अलग अलग मोड्स जो हैं कम्युनिकेशंस के जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। ओके, और ये जो फिगर है वो इवोल्यूशन, जो चेंजेस आए हैं हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम में, उस चीज को बता रहा है कि कैसे लोग पहले आपस में बात करते थे, फिर बर्ड्स का और नगाड़ों का यूज करते थे, या कुछ सिंबल्स का यूज करते थे, फिर पोस्ट ऑफिस पोस्ट कार्ड आया, फिर उसके बाद आपका न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, लीफलेट्स वगैरह आए, फिर हम आज के टाइम में तो हम इतने सारे मेजर मीन्स का यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग इवन सैटेलाइट्स आल्सो, जिससे कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री की भी जो बातें हैं, ठीक है, जो
चीजें चल रही हैं, हम उसको हमें पता चल रहा है कि अभी आज फ्लोरिडा में क्या हो रहा है, आज ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है. वी कैन इजिली वी कैन इजिली गेट टू नो कि दूसरे कंट्री में क्या चल रहा है with the help of these things. Okay, so the advancement in the field of communication has brought about an information revolution in the world. Different modes of communications are used to provide information to educate as well as to entertain. हम different modes of communication को use कर रहे हैं. Communication का मतलब ये नहीं है कि आपस में बातचीत करो. So whatever the symbols, whatever the symbols which we are using, या कोई भी mode जिससे हमें कोई knowledge gather हो रही है, ठीक है, sign language भी अगर हो रही है तो that is also the mode of communication. We are able to know the message, we are able to gather the knowledge. ठीक है, हम इंफॉर्मेशन के लिए हम अपने आप को एजुकेट करने के लिए, इवन एंटरटेन करने के लिए भी वी आर यूजिंग डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन. सो न्यूज़पेपर्स, रेडियो, टेलीविजन के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं बहुत. वी कैन कम्युनिकेट विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल. नाउ कनेक्ट दिस टॉपिक टू दैट चैप्टर अंडरस्टैंडिंग मीडिया, मास मीडिया. जब हम रेडियो, टेलीविजन, न्यूज़पेपर के थ्रू हम क्या है, बहुत सारे लोगों को वी कैन कम्युनिकेट विद सो मेनी पीपल, विद लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट अ टाइम. They are therefore called mass media. इसलिए हम इनको mass media भी बोलते हैं. I already explained you at that time कि mass media क्या होता है. जब हम बहुत सारे लोगों को एक साथ information कोई देते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं mass media. Satellites have made communication even faster. Even you all are using OTT platforms to entertain yourself, or even we are using this Zoom platform due to satellites also. Satellites ने communication बहुत ज़्यादा faster कर दिया है. सैटेलाइट्स की हेल्प से हम ऑयल एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, हम फॉरेस्ट को सर्वे कर पा रहे हैं, अंडरग्राउंड वाटर को सर्वे कर पा रहे हैं, इवन मिनरल वेल्स, वेदर फोरकास्ट, डिजास्टर वार्निंग. दीज आर सम ऑफ द थिंग्स व्हिच वी कैन एक्सप्लोर विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट्स. इंटरनेट, नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स, ईमेल्स हम सेंड करते हैं इंटरनेट के थ्रू. हम मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, बहुत पॉपुलर है. इंटरनेट जो है, हमें वर्ल्ड में हम आपस में एक दूसरे से हम बहुत इजीली इंटरैक्ट कर पा रहे हैं, और कंफर्टेबली हम इंटरैक्ट कर पा रहे हैं. हम रेलवे की टिकट्स रिजर्व जो है आज फोन में भी कर लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू कर लेते हैं, सिनेमास की कर लेते हैं, एयरवेज की कर लेते हैं. बस घर पे इवन टुडे वी कैन शॉपिंग